आज हम पढ़ने जा रहे हैं हु इज एन एक्सपर्ट। तो जनरली अगर हम बात करें एक्सपर्ट कौन होता है, तो वो तो बाद का सवाल है। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो ओपिनियन है एक्सपर्ट की वो ली जा सकती है कि नहीं। अगर हम कहें तो ली जा सकती है, लेकिन वेदर एन ओपिनियन ऑफ अ विटनेस ऑफ अ फैक्ट इज रेलिवेंट। तो अगर हम इन द आइज ऑफ लॉ एंड इन द आइज ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस देखें और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखें, तो हमें एक बात समझ में आती है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन relating to any case is a task of the court। किसी केस के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना इट इज अ टास्क ऑफ द कोर्ट, बिकॉज आफ्टर द फैक्ट्स हैज बीन एड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, आफ्टर द एविडेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड, तो ट्रायल के बाद what shall be the judgment of the court? The court shall form an opinion upon a particular fact. So to form an opinion upon a particular fact is a task of the court, and witness are the witness of any fact, not they are the witness of any law, not the witness of any opinion, because the opinion of a witness is not required as much as because the witnesses are required to give the facts what they have been seen, saw or heard. They have to give the fact, not the opinion. ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि क्या ओपिनियन था, किस चीज पे आपका क्या ओपिनियन है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए आपने क्या देखा। इफ ए इज एक्यूज ऑफ मर्डरिंग बी, अगर इज देयर एनी पर्सन हु हैज सीन A has murdered B, then he has to give the particular fact that he has saw when A has murdered B। वहाँ ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी है। सो जनरली टू फॉर्म एन ओपिनियन रिलेटिंग टू एनी फैक्ट इज द टास्क ऑफ द कोर्ट। लिख लीजिए 2 लाइन में। जनरली टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट एनी मैटर, generally to form an opinion about any matter is a task of court, and not of an expert, and not of an expert witness, because the general rule or principle of law of evidence is the general rule or principle of law of evidence is that every witness is a witness of fact, when they appeared before the court of law. When they appeared before the court of law, they has to depose the facts related to the case The court of law के बाद क्या बोले हैं? court of law, the fact which is, दोबारा बोलो कहाँ से आप पूछ रही हैं। So before the court of law के बाद when they पूरा appeared before the court of law, when they appear before the court of law, they has to be the fact has to be related to the case, and witnesses witnesses is to be acquainted with the fact, and not their opinion as to the matter, not their opinion as to the matter।
they should speak about what they knows. They should speak what they knows and not what they believe देखिए, समझ में आया होगा कि यहाँ पर ओपिनियन फॉर्म करना एक कोर्ट का काम है, और जो विटनेसेस ऑफ द फैक्ट, दे हैज टू डिपोज द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द केस, एंड दे नॉट हैव टू मेक एनी ओपिनियन एज दे आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट। जब वो एक्वेंटेड विद द फैक्ट है तो आप फैक्ट्स बताइए, अपनी ओपिनियन नहीं। ठीक है, बट 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 under the law of evidence when the court has to form opinion relating to any point like science, art, or any other things, finger impressions, handwriting, foreign law, etc., then the opinion of such person may be taken. The opinion of such person may be taken. Those are having a knowledge or expertise in such matters. ठीक है, those are expertise in such matter. अगर हम सेक्शन 39 ऑफ बीएससी की बात करें तो वहां पे कहा गया है कि अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना, देखिए कोर्ट कब ओपिनियन फॉर्म करे, किस मामले में ओपिनियन फॉर्म करेगी, वेयर दे हैव एनी डाउट, when they are not expertise in such a matter like foreign law के बारे में, whether it is applicable in India or not, foreign law applicable नहीं होता है इंडिया में। ठीक है, साइंस के बारे में, आर्ट के बारे में, एनी अदर थिंग्स के बारे में, फिंगर इम्प्रेशंस के बारे में और हैंड राइटिंग के बारे में अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है तो ऐसे पर्सन की ओपिनियन लेंगे तो वो या तो एक्वेंटेड हो, नॉलेज रखता हो या एक्सपर्टीज हो, देयरफॉर इन लिखिए, देयरफॉर इन केस ऑफ मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सॉरी बॉम्बे, in Mubarak Ali versus State of Bombay, the Honorable Supreme Court has held that the Honorable Supreme Court has held that the Honorable Supreme Court has held that witnesses are permitted to express witnesses are permitted to express their opinion as to the matter it would amount to delegation of judicial function क्लियर है बात। जहां पर जुडिशियल फंक्शनरीज ने डेलीगेट किया, आपसे पूछा है कि बताइए आप क्या जानते हैं इस बारे में, इसके बारे में आप जरा हमको ओपिनियन दीजिए। ठीक है, तो हु इज एन एक्सपर्ट? तो एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु having the knowledge of foreign law, science, art, any other laws, any other things, finger impression or handwriting. When the opinion has been made by such person, such opinion is relevant under section 39 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जरा आप पढ़ो सेक्शन 39। Section 39.
Opinion of third persons when relevant. Section 39. Opinion of Hmm. expert. When the Hmm. court has to form an opinion upon a point of foreign law or science or of science or art or any other field, or as to identity of handwriting or finger impression, the opinions upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science, or art, or any other field, or in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts, and such persons are called experts. ठीक है ना, ऐसे पर्सन को एक्सपर्ट कहा जाएगा जिसकी जो है कोई नॉलेज हो, कोई एक्सपर्टीज हो फॉरेन लॉ में. द पर्सन हु इज इन एक्सपर्ट इन अ फॉरेन लॉ, स्पेशली स्किल्ड का है कि स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, एनी अदर फील्ड, फिंगर impression, and the person is acquainted with handwriting of a person. When such person is especially skilled in such a field, he shall be known as a what? Expert. Opinion of an expert. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि what do you अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फॉरेन लॉ? फॉरेन लॉ क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन लॉ? तो अगर हम बात करें कि फॉरेन लॉ क्या होता है, तो फॉरेन लॉ क्या है? देखिए, अब एक एक वर्ड पढ़ेंगे हम, जिसमें वेर अ पर्सन इज स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, एनी अदर फील्ड, फिंगर इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग. अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये एसेंशियल एलिमेंट है. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन रिलेटिंग टू एनी मैटर, फॉरेन लॉ वगैरह, तो वहां पर हमें क्या करना है? At a particular point, the court has to form an opinion. So now the point is, what is foreign law? फॉरेन लॉ किसे कहते हैं? तो देखिए, फॉरेन लॉ का मतलब है द लॉ विच आर नॉट एप्लीकेबल अंडर द इंडियन लॉ. अगर हम सेक्शन 2 क्लोज 5 सीपीसी देखें, फॉरेन जजमेंट जिसको हम कहते हैं, अगर सेक्शन 13-14 सीपीसी देखें, वहां पर भी आपको समझ आ जाएगा कि फॉरेन लॉ, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं. तो अगर आप सेक्शन 2 सब क्लोज 5 सीपीसी देखें, तो फॉरेन कोर्ट कहा गया कि व्हाट इज फॉरेन कोर्ट. तो कहा कि दोज हु आर नॉट established by the law, by the Indian law, and are not administered by the central government. Now the question is, foreign law होता क्या है, whether it is applicable in India or not. Is there any view relating to the point, Haris? No, but foreign law is not applicable in Indian territory most generally. ठीक है, generally foreign law is not applicable in Indian Indian law. टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी. ठीक है, अगर हम कहें कि when it is not applicable and there is a question relating to the foreign law, then how the Supreme Court and High Courts and the courts can form an opinion? Then the court is required an opinion of a person who is acquainted with the law, who has especially skilled in foreign law. जो फॉरेन लॉ से स्पेशली स्किल्ड होगा, अब उनकी ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी. देन द कोर्ट में फॉर्म एन ओपिनियन रिलेटिंग टू सच थिंग्स लाइक फॉरेन लॉ. और फॉरेन लॉ में हम एक एक्सपर्ट लेंगे, उस एक्सपर्ट को चीजें भेजेंगे. देन व्हाट विल बी द स्टांस ऑफ सच एक्सपर्ट? इट शैल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, लिखिए जरा. फॉरेन लॉ मीन्स any law which is not enforceable in India, any law which is not enforceable in India, and where the court requires to form, where the court requires to form an opinion, where the court are requires to form an opinion
As to foreign law, court can seek the help of expert upon such particular point. Upon such particular point, the opinion of the person, relating to foreign law is relevant under section 39 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 39 में रेलिवेंट होगा। केस लिखिए इसमें, अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम। देखिए इसमें कहा, कोर्ट ने कहा कि वेयर द कोर्ट इज नॉट कन्वर्सेंट विद द फॉरेन लॉ, द कोर्ट में टेक एन असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट हु इज एक्सपर्ट इन फॉरेन लॉ। जो फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट है उनके असिस्टेंस ली जा सकती है। एंड द ओपिनियन हैव बीन मेड बाय सच एक्सपर्ट अपॉन सच पॉइंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर है बात? जल्दी जल्दी बताइए भाई। नेक्स्ट, मैटर रिलेटिंग टू साइंस एंड आर्ट। मैटर रिलेटिंग टू साइंस एंड आर्ट। अब हमको जानना है कि whether upon the matter of the science or art, whether a court can take an opinion of a person who is acquainted and who is an expert in science in the term of the science के टर्म में कैसे साइंस को यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 39 में कैसे कहा गया है कि साइंस का मतलब क्या है। तो कोर्ट ने कहा साइंस डज नॉट मीन इट इंक्लूड्स ओनली अ टेक्निकल टर्म, it includes only a technical term, but the knowledge of a person relating to the scientific matter, and where a person who are especially skilled in such matter, if any opinion have been formed by such person upon the recommendation of the court, the opinion of such person is relevant. For example, A has been tried for committing a murder of his wife. ए को ट्राई किया गया उनकी वाइफ के मर्डर करने के लिए। He has stated that he hasn't caused any murder and she have been killed herself. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद किल किया है, सुसाइड किया है, and she has not been murdered by A. अब समझिएगा बात, the court has referred C weapon to a scientific team, एक साइंटिफिक एक्सपर्ट को भेजा है। अब उनसे कहा कि इन पे जरा फिंगर इम्प्रेशन से बताइए जरा ये किसके इम्प्रेशन है, क्या डिसीज के हैं कि एक्यूज के हैं। और दूसरा, सुसाइड में गोली कितनी दूर से मारी जा सकती है कि भाई सुसाइड अगर कोई करेगा तो ऐसे करेगा, या ऐसा तो है नहीं कि उसमें जो डॉक्टर की ओपिनियन होगी, सच ओपिनियन शैल बी रेलिवेंट। जो डॉक्टर की ओपिनियन होगी, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट की होगी कि कितनी दूर से गोली मारी गई है या गोली के ऊपर फिंगर इंप्रेशन किसकी, तो ओपिनियन ऑफ सच पर्सन इज रेलिवेंट। यहां पर माना गया when the death has not been caused
caused by a person who is accused, उनके द्वारा नहीं किया गया, बट इट हैज बीन फाउंड, ये पाया गया है कि जो फिंगर इंप्रेशन थे वो उन्हीं लेडी के थे और उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो जो ओपिनियन दिया गया, सच ओपिनियन इज रेलिवेंट बट नॉट कंक्लूसिव। रेलिवेंट है, कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, केस का नाम लिखिए, आर वर्सेस स्मिथ। आर वर्सेस स्मिथ, समझ आए कि नहीं? जी भाई आ गया। क्या कहना चाहती है? ठीक है, अब मैटर आता है आर्ट। व्हाट अबाउट आर्ट्स? तो कहा गया कि आर्ट में क्या करेंगे? art, if any person is acquainted with any facts, if any person is acquainted with any fact, then such person may give an opinion upon such fact. If a person is especially skilled in knowing anything and detecting anything, then such person may give the opinion upon such matter. For example, if there is an advocate and advocate having a great knowledge of identifying whose handwriting is this. कोई एक एडवोकेट है, एडवोकेट इज अ पर्सन हु हैज बीन रजिस्टर्ड इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एडवोकेट हो जाते हैं एंड जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको एडवोकेट कहा गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आया कि क्या वेदर दे कैन एग्जामिन, क्या वो एग्जामिन कर सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया ओपिनियन रिलेटिंग टू हैंड राइटिंग रेलिवेंट है कि नहीं अंडर सेक्शन 39। तो यहाँ पर जो है आर वर्सेस सिल्वर एंड लॉक का केस है, आर वर्सेस सिल्वर और लॉक का केस है। सिल्वर और लॉक के केस में कोर्ट ने कहा कि कहीं नहीं है, कहीं ये जरूरत नहीं है कि द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन वन फील्ड कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन अनदर फील्ड। If a person is an advocate and who is having the enrolled in the bar council of India and practicing before the court of law, then where it is been written he cannot be the expert relating to the identification of the handwriting? कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता है, and the opinion of such person is relevant under section 39 of BSS 45 Indian Evidence Act. Clear? जी भाई। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिलेटिंग टू द हैंड राइटिंग। अभी कितने हो गया हमारा? नंबर 1 इज फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट। अब क्वेश्चन आता है रिलेटिंग टू द हैंड राइटिंग, हु कैन बी द एक्सपर्ट इन केस ऑफ द हैंड राइटिंग? तो आप कहेंगे कि सर एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द पर्सन्स हैंड राइटिंग, जो एक्वेंटेड हो, या वो पर्सन हु इज, या वो पर्सन who is known to the handwriting of any person and who can examine, जो एग्जामिन कर सकता है किसी के हैंडराइटिंग को, वो एक्सपर्ट होगा। कहाँ रखे हो? तो चलो विधिक परामर्श, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है? कौन हो सकता है हैंडराइटिंग? तो कहा गया कि वो पर्सन हो सकता है जो एक्वेंटेड हो, जानकार हो, या एक्सपर्ट स्पेशली स्किल्ड हो ऑफ नोइंग। अभी जब हम एक क्लास कर रहे थे तो हाई कोर्ट के एक जज हमको बता रहे थे, 3-4 साल पहली बात है, कि हैंड राइटिंग को कैसे जाना जाता है कि किसकी हैंड राइटिंग है। तो उन्होंने कहा कि देर आर
16 वे 15 or 16 way to examine whether the handwriting belongs to any person or not. हमने कहा सर कैसे, सपोज हम अपना साइन जो है एक तरीके से करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बात है कि हमारी हैंड राइटिंग है कि नहीं, हम दूसरे तरीके से लिखने का नहीं, यही तो है। कहना आपके जो वर्ड बनाने का तरीका है, अल्फाबेट लिखने का तरीका है, उसको एग्जामिन किया जाएगा। आप अल्फाबेट कैसे बना रहे हैं, क्या वो अल्फाबेट वैसे बना हुआ है वहां की नहीं। तो ऐसे 16 वेज है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग वो ओपिनियन दे सकता है, या वो पर्सन दे सकता है हु इज स्पेशली स्किल्ड इन knowing whether the handwriting belongs to a particular person or not. ठीक है, यस नो। जी भाई। अच्छा, ये पिछले वाला आप कह सकते थे कि सर ये तो हैंड राइटिंग में केस आना चाहिए, हैंड राइटिंग में भी आ जाएगा, लेकिन आर्ट है ये, वो एडवोकेट भी है लेकिन वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी है। हैंड मतलब राइटिंग क्लियर है ना बात? हाँ, जी। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताइए, आर्ट वाले में हमें कोई केस और आपको बता दे। वेर a person who is not having any degree relating to such matter, whether he can be expert, उसके पास कोई डिग्री नहीं है उस मैटर से रिलेटिंग, उस फैक्ट से रिलेटिंग जिसको उसे एग्जामिन करना है और अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है, सो वेदर ही कैन गिव द ओपिनियन। जी भाई, दे सकते हैं। बताइए। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, एक गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ के पास गोल्ड आता है, सोना आता है, उसकी प्योरिटी जाननी है, whether a gold is a pure or not, whether it is a 24 कैरेट or not, 24 कैरेट का है, प्योर है कि नहीं है। अब एक जो है गोल्ड स्मिथ के पास गए, उस गोल्ड स्मिथ he has he haven't and he hasn't any डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है कि वो एक्सपर्टीज है, लेकिन बहुत सी जगह, बहुत से मामलों में उन्होंने जाना पहचाना कि ये जो सोना है प्योर है या नहीं है। There are number of the cases in which he has given the opinion relating to whether the gold is pure or not, whether he can give his opinion relating to such fact। तो कोर्ट ने कहा यस, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो पर्सन एक्सपर्ट हो उसके ऊपर पास कोई डिग्री हो, कोई नॉलेज हो उस पर्टिकुलर फैक्ट पर, खाली नॉलेज उसकी काफी है। when he has a sufficient knowledge to examine whether the thing is whether the thing is pure or not, then such opinion is relevant under section 39, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। गोल्ड स्मिथ केस कहा जाता है इसको, और कोर्ट ने माना कि वो गोल्ड स्मिथ जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, ही कैन ऑल्सो बी अ एक्सपर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। सर ये साइंस हैंड में राइटिंग आर्ट में आएगा, आर्ट में आएगा कि हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन में आएगा? कौन सा? जो अभी आप बता रहे थे, अब्दुल रहमान कौन सा वर्सेस वाला स्टेट ऑफ बता रहे? मैसूर। हाँ, ये आर्ट में आएगा, गोल्ड स्मिथ वाला। हैंड राइटिंग आइए, हैंड राइटिंग अब आ जाइए। हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग में कोई जो पर्सन नॉन हो, एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स हो, या जिसकी नॉलेज हो। अब पूछा गया कि क्या हैंड राइटिंग के बेस पर, खाली हैंड राइटिंग के बेस पर ओपिनियन जो फॉर्म की है उसके बेस पर किसी मैटर को डिसाइड किया जा सकता है? तो कोर्ट ने कहा नहीं,
though it is relevant, but it is a weakest kind of evidence. It is a weakest kind of evidence. वीक है, बहुत वीक है. अब एक पर्सन है, सपोज एक मैटर कोर्ट के समक्ष आया, whether a particular handwriting belongs to a particular person or not. ए जो है बी को गुड्स भेजते. ए इज अ बिजनेसमैन, बी इज अनदर बिजनेसमैन इन विच they usually trade, and A is not directly trade with B. B के साथ ट्रेड नहीं करते डायरेक्टली, बट थ्रू हिज एजेंट C. A trade with B through his agent B. So every letter of B comes to C, then to A. There is a question relating to the money B hasn't paid to A. B को पे नहीं किया, बी ने ए को पे नहीं किया. कुछ मनी, कुछ एक ट्रांजैक्शन है, कोई ट्रांजैक्शन है. बी क्लेम करता है कि आई हैव पेड, ए मना करता है कि मैंने पे नहीं किया. और बाय एवरी ट्रांजैक्शन, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, बी हैज मेड ए रिसीट टू सी. बी उस ट्रांजैक्शन की रिसीट किसको भेजता था? सी को. सी उसको मेंटेन करते थे. जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर केस हुआ, उस ट्रांजैक्शन की जो रिसीट थी वो भी बी को भेजी गई, सी सॉरी बी के द्वारा सी को भेजी गई. अब क्वेश्चन आया कि वो रिसीट लाई जाए. अब रिसीट को देख के सी ने कहा, सर दिस रिसीट डज नॉट बिलोंग्स टू द हैंड राइटिंग ऑफ बी. ये बी की हैंड राइटिंग नहीं है. केस किस किसके बीच में केस? ए वर्सेस बी. तो क्या यहाँ पर ओपिनियन जो है सी का ओपिनियन रेलिवेंट होगा या नहीं? होगा भाई. यस सर. क्यों होगा? क्योंकि वो एक्वेंटेड है, वो जानता है कैसे लिखता है. बी किस तरीके से लिखता है कि यस इतना मनी, इतना रुपया, इतना पैसा दिया. ठीक है, वो डेली जानता है, डेली की सर्कमस्टांसिस में उसके पास आते हैं, वो जानता है. तो यहाँ पर सी के द्वारा दिया गया ओपिनियन रेलिवेंट होगा. तो जरा इसमें केस लीगल हो. भगवान कौर वर्सेस एम केशामी. भगवान कौर वर्सेस एम केशामी. In this case, the Honorable Supreme Court has held that evidence of handwriting expert is weakest and less credible. Now, finger impression. Human body is changed as per the span of the time. The body's growth change when the time is elapses. The body part of a person will acting changing. Now the question is whether a finger impression has been made by any person, whether it can be changed after a span of a time. क्या ये चेंज हो सकते हैं? नहीं भाई, ये नहीं होते. नहीं हो सकते. सर. फिंगर इम्प्रेशन कुड नॉट बी चेंज. अब आप जो है बचपने में किसी के फिंगर इम्प्रेशन लीजिए और बुढ़ापे में लीजिएगा, सेम होगा. समझ रहे हैं आप? इट कुड नॉट बी चेंज. आपके चेंज थे? नहीं चेंज होंगे बेटा. कैसे चेंज हो जाएंगे? फिंगर इम्प्रेशन सबके जो है स्पेसिफिक होते, नहीं चेंज हो सकते.
वो हो सकता है कि कभी कभी मशीनरी में गलती हो सकती है, क्योंकि थोड़े से हो जाते हैं, हल्के से हो जाते हैं, बहुत मतलब माइनर से। हाँ, मतलब कि अगर हम बात करें कि बिल्कुल ही हमने जो छोटे बच्चों के और फिर जाके बड़े होने में हो सकता है कि हल्का फुल्का हो गया हो, जैसे कुछ हमारे बहुत से नॉन पर्सन है, अब उन्होंने आधार कार्ड बनवाया था 10-15 साल पहले, अब उनका आधार कार्ड ही खोया गया, वो निकल नहीं रहा है, अब वो फिंगर लगाने जाते, फिंगर इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, वो आ ही नहीं रहे, ड्यू टू द स्पैन ऑफ हर एज, उनकी एज इतनी बढ़ गई कि वो अब उसमें आ ही नहीं रहे। ठीक है, लिखिए जरा, फिंगर इम्प्रेशन। किरण, आप माइक ऑफ कर लीजिए। फिंगर इम्प्रेशन is precise identity is precise identity. Human body is always under change. Human body is always under change, but no finger impression, but no finger impression is of changing nature. It has an important role in civil laws. पहले सिविल लॉज है लेकिन अब क्रिमिनल भी है, क्योंकि 2022 के एक्ट आने के बाद अब क्रिमिनल लॉ में भी फिंगर इम्प्रेशन लिया जा सकता है, नॉट ओनली ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन बट ऑल्सो ऑफ, पढ़ा है आपने 2022 का क्रिमिनल लॉ एक्ट, क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन एक्ट, जहां पर फिंगर इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन और पाम इम्प्रेशन आपके लिए जा सकते हैं, एंड इट कैन बी टेकन ऑफ अ पर्सन who is designed to commit a cognizable offense, उसका भी लिया जा सकता है जो डिजाइन कर रहे हैं, और द पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड। पहले का जो आइडेंटिफिकेशन एक्ट था 1920 का, उस एक्ट में जो है खाली कन्विक्टेड पर्सन के लिए जा सकते थे, बट द एक्ट ऑफ 2022 contained the provision relating to a person who is an accused. A finger impression, thumb impression, palm impression, retina, iris, and eye can be take of a person who is an accused, though he has not been convicted, and it has to be stored for a period of 75 years. 75 साल के लिए प्रोविजन दिया गया है कि इसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए केस लिखिए, इन एम्परर वर्सेस फकीर मोहम्मद, इन एम्परर वर्सेस फकीर मोहम्मद, in case of opinion of opinion relating to finger impression, no corroboration is required, no corroboration is required. फिंगर इंप्रेशन के मामले में कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? What is the evidentiary value of an expert evidence? बताइए, एक्सपर्ट एविडेंस की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है? What is the evidentiary value of expert evidence? It is a corroborative in nature, not binding on the court. It is corroborative in nature. जी? Such evidence can be taken as a substantial piece of evidence. No, not at all. Harsh, it is not a substantive piece of evidence. It is corroborative in nature. अभी तो हमने पढ़ा है कि जो
जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैंड राइटिंग है विद द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, उनका लिया जा सकता है, बट वो खाली it has to be corroborated with other evidence. Therefore, in Narayan Singh versus, लिखिए in Narayan Singh versus state of UP, opinion of expert considered a light value because it may likely to be prejudice in favor of a person who called them, ठीक है। In this case, court has stated that general corroboration is necessary. And court is not bound by opinion of expert. क्लियर है? अब जरा सा बताइए, सेक्शन 39 में कोई परेशानी, दिक्कत? क्लॉज 2 आ जाइए। क्लॉज 2। जी भाई, सेक्शन 39 क्लॉज 2। When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer source or any other electronic or digital form. The opinion of examiner of the electronic evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act 2000, 21 of 2000 is a relevant fact. ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर कोई ओपिनियन किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस से रिलेटेड है, डिजिटल एविडेंस से रिलेटेड है, या कंप्यूटर सोर्स से रिलेटेड है, तो किसकी ओपिनियन आप मानेंगे? देखिए इसमें लिखा हुआ, ये पूछा गया सवाल है, द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज रेलिवेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, पूछा जाता है किसकी ओपिनियन आप मानेंगे, किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी? तो ओपिनियन ऑफ अ पर्सन हु इज एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज रेलिवेंट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 40, बताइए। Section 40. Facts bearing upon opinion of experts. Facts not otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जो ओपिनियन है, वेयर अ पर्सन इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिलेटिंग टू एनी फैक्ट, वो चीज भी रेलिवेंट होगी जो या तो इनकंसिस्टेंट करे उससे या उसको सपोर्ट करे। पढ़िए जरा, देखिए इलस्ट्रेशन 1, समझ आ जाएगा। Illustration A. The question is whether A was poisoned by certain poison. The fact that other persons who were poisoned by that person exhibit certain symptoms which experts affirm or deny to be symptoms of that poison is relevant. देखिए क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है ए नाम का, जिसको जहर दिया गया है, पॉइजन दिया गया है, सर्टेन पॉइजन था, कोई एक पॉइजन था, पर्टिकुलर पॉइजन था,
वैसा ही पॉइजन दूसरे पर्सन को दिया गया, सेम पॉइजन, द पॉइजन विच हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू ए वाज आल्सो बीन गिवन टू एनी पर्सन, सपोज एक्स को दिया गया है। अब जो एक्स के मामले में एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी, सच ओपिनियन इज आल्सो रेलिवेंट इन केस ऑफ ए, क्योंकि पॉइजन सेम है, सेम सिम्टम्स है, सेम थिंग है, तो जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन एक्स के मामले में दी वही ओपिनियन ए के मामले में भी रेलिवेंट होगी। यस नो, क्लियर है? या तो ये कहा हो कि ये जो पॉइजन है ये पॉइजन नहीं है, इट इज अ मेडिसिन, तो भी रेलिवेंट है। और अगर ये कहा कि दिस इज पॉइजन और सेम सिम्टम्स से वही है, तो भी रेलिवेंट है, चाहे वो इनकंसिस्टेंट हो, चाहे सपोर्ट करे, चाहे रिबट करे, इन बोथ द कंडीशन द ओपिनियन आर रेलिवेंट। अब आ जाइए सेक्शन 41। 41 में फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखिए 41, अब यहाँ जो ओपिनियन जो फॉर्म हो रही है वो ओपिनियन फॉर्म हो रही है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट और थर्ड पर्सन? An opinion of an expert can be taken when such person is specially skilled in such thing, whether in foreign law or in science, art, any other things, or finger impression or handwriting. लेकिन थर्ड पर्सन की राइटिंग जो खाली जिसने देखी है सिग्नेचर, सिग्नेचर ऐसे करता है, उसकी ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी। दो ही इज नॉट expert, he does not know anything, ऐसे बनाते हैं वैसे he does not know anything, then the person who is acquainted with the handwriting, such opinion, then the opinion of such person is also relevant under section 41। पढ़िए। Section 41. Opinions as to handwriting and signature when relevant. Clause 1. When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact. ठीक है ना? When the court has to form an opinion as to the person by whom such a document has been written or signed, किसके द्वारा वो डॉक्यूमेंट रिटर्न किया गया है या साइन किया गया है, तो उस पर्सन की जो ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो एक्वेंटेड होगा ऐसे फैक्ट से, जैसे फैक्ट से एक्वेंटेड होगा ऐसी हैंड राइटिंग से, उसके द्वारा दी गई ओपिनियन रेलिवेंट है। क्लियर है बात या नहीं है? ठीक है। और उसकी भी ओपिनियन रेलिवेंट होगी जिसने खुद देखा हो लिखते हुए। अगर कोई पर्सन किसी को लिख रहा है कोई चीज और वो उसको लिखते हुए देखता है तो उसके द्वारा दी गई ओपिनियन भी रेलिवेंट होगी। एक्सप्लेनेशन में देखिए वही वाली बात हमने कि जो रिसीव करता है या सेंड करता है उसके द्वारा देखी गई चीज भी रेलिवेंट होगी। हमने अभी जो ए और बी वाला मैटर पढ़ा, तो सी की जो ओपिनियन होगी चाहे वो ए के लेटर से रिलेटेड हो चाहे बी के लेटर से रिलेटेड हो, दोनों ही मामलों में ए की ओपिनियन सी की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ें जी। Explanation. A person is said to be acquainted with the handwriting of the another person when he has seen the person's write or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. क्लियर है बात? जी भाई क्लियर है ना? अब आ जाइए क्लॉज 2। क्लॉज 2 में और किसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी इन केस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बताइए। Clause 2. When the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of certifying authority which has issued the electronic signature certificate is a relevant fact. अंडरलाइन कीजिएगा ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी।
उस अथॉरिटी की जो सर्टिफाइड कर रही है कि यस द सिग्नेचर इज जेन्युइन, उनकी और सिग्नेचर इज फोर्ज्ड, जो सर्टिफाई कर रही है उसकी ओपिनियन क्या होगी, रेलेवेंट होगी। ठीक है, सेक्शन 42 सेक्शन 40 पढ़े, 45, 42, 41 पढ़े, 42 ये सब प्री के सेक्शन है। बताइए। Section 42. Opinion as to existence of general custom or right when relevant. When the court देखिए has अब to form an वो कह रहा है कि जनरल कस्टम राइट से रिलेटिंग किस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी। तो जहाँ कस्टम की बात कर रहे हैं तो वही जो गांव के बुजुर्ग होंगे जो उस जनरल कस्टम की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। हमने याद है एक चारागाह वाले एग्जाम्पल दिया था कि सब लोग एक कॉमन पास्चर लैंड है, कॉमन पास्चर लैंड में गांव के सभी लोग जो हैं अपने पशुओं को चराते हैं। तो एक आदमी अगर बाहर से आके उस गांव में बस गया है, रहने लगा है, तो क्या उसका भी राइट उसके ऊपर? यस, उसका भी जनरल राइट होगा एज टू दी अदर्स, क्योंकि वो राइट वहां एग्जिस्ट करता है। पढ़िए। G. Section 42. Opinion as to existence of general custom or right when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions as to the existence of such custom or right of persons who would likely to know of its existence if it existed are relevant. ठीक है, जो पर्सन जानता है। अगर हमने कहा कि भाई हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हारिस जो है दूसरे के गांव गए, उस अपने गांव में जाके रहने लगे 30 साल बाद, 40 साल बाद, और वहां पर जो है कॉमन पार्शियल लैंड थी। अब इनको लोग मना करने लगे, आप नहीं अपने पशु चरा सकते, खाली जो यहाँ पर रहते हैं वो चरा सकते हैं। लेकिन वहीं पर गांव के 80 साल पुराने, 80 साल बुजुर्ग एक आदमी आते, वो कहते नहीं, इनको भी राइट है, क्योंकि ये यहीं के तो रहतवार, यहीं तो रहते थे ये। इनके जो फादर है वो जो है शहर चले गए थे कमाने के लिए, लेकिन ये रहने वाले यही है, इनका अधिकार है, तो उनकी जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। क्लियर है बात? इलिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। G. Illustration. The right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section. क्लियर है बात? सेक्शन जी भाई 43 clear. 43 Section 43. Opinions as to usages, tenets, etc. when relevant. When the court has to form an opinion as to first, the usages and tenets of any body of man or family. Second, the constitution and governance of any religious or charitable foundation. Or third, the meaning of word or terms used in a particular districts or by particular classes of people. The opinion of persons having special means of knowledge thereon are relevant. ठीक है, जिसको जो भी हमने शुरू में कहा कि जो पर्सन हु आर स्पेशली स्किल्ड रेलिवेंट है इन सब मैटर में भी, यूसेजेस के मामले में, टेनेट्स के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, गवर्नेंस के मामले में, इन मामलों में उस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी हु हैज स्पेशली स्किल्ड इन सच फील्ड। अब आ जाइए सेक्शन 44, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप। तो ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप में किस पर्सन की ओपिनियन रेलिवेंट होगी, किसकी उसमें माना जाएगा कि द ओपिनियन ऑफ सच पर्सन इज रेलिवेंट। अब सपोज करिए some A and B are residing in a locality, suppose बहुत से स्टूडेंट बाहर रहते हैं और जो है सपोज दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में जो A and B, A is male and B is female, both are residing in a living relationship में रहते हैं। जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, they considered themselves as a husband and wife, they treated them as husband and wife। When the question is arises whether A and B is husband and wife, the opinion of a person who are residing in the society is relevant। याद रखिएगा, उनके द्वारा दिया गया ओपिनियन, बिकॉज दे ऑलवेज। अब सपोज करिए कि एक बर्थ होता है करवा चौथ का बर्थ, उस बर्थ में देखा कि एक ही पूजा भी उतार रही है छत पर। अब उनको तो यही लगेगा ना कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ,
दो दे हैव नॉट बीन लीगली मैरिड, वो तो लीगली मैरिड नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो ओपिनियन सोसाइटी के पर्सन्स की होगी वो रेलिवेंट होगी। पढ़िए जरा। Section 44. Opinions on relationship when relevant. When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who, as a member of the family or otherwise, has a special means of knowledge on the subject is a relevant fact. क्लियर है ना बात? जी भाई, clear है. इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए और अच्छा लगेगा। जी. Illustration A. The question is whether A and B were married. The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. समझ रहे हैं आप? जी भाई. कंडक्ट। अब यहाँ पर एक लाइन बहुत प्यारी इन्होंने एक वर्ड लिखा है, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by the conduct as to the existence of such relationship। अब भाई आपके कंडक्ट से तो यही लगता है ना कि आप हस्बैंड वाइफ है, आप जो है सिंदूर भी बढ़ते हैं, आप जो है जब व्रत रखा जाता है तो व्रत भी आप रख रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही, तो दे विल ट्रीट यू एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर है बात? अब इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए, इंपोर्टेंट है ये जो। The question is whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family is relevant. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ए जो है फैमिली का लेजिटिमेट मेंबर है कि नहीं है। सपोज एक्स एंड वाई की शादी है, एक्स और वाई की शादी में कहा गया है कि जो इनके चाइल्ड है वो लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली उसको लेजिटिमेट ट्रीट करती है, तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा, इलिजिटिमेट नहीं। क्लियर है बात? जी भाई. Now the question is arises whether where any offense has been committed under section 82 of the भारतीय न्याय संहिता, 84 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, इन वाले मामलों में क्या ओपिनियन ऐसे पर्सन्स की मानी जाएगी? तो नहीं, ऐसे मामलों में नहीं चलेगी। पढ़ेंगे प्रोविजो। G. Provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceeding under the Divorce Act 1869, 4 of 1869, or in prosecution under section 82 and 84 of BNS 2023. अब ये सवाल आया है कि क्या ए, सपोज ए इज ऑलरेडी मैरिड विद बी एंड ए ऑल्सो मैरिड टू एक्स। नाउ बी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ए फॉर बाइगेमी। बाइगेमी की है किन्होंने? ए ने। अब ओपिनियन उनके दोस्त कह रहे नहीं सर, हमने तो बस इनको बी के साथ ही देखा, एक्स के साथ तो देखा नहीं। इट इज नॉट ओनली सफिशिएंट। अब जो है ए को प्रूव करना होगा कि यस ही हैज नॉट बीन एक्चुअली मैरिड टू सी बट ओनली लिविंग विद हर। समझ रहे हैं आप? तो ओपिनियन ऐसे मामले में खाली रेलिवेंट नहीं होगी वेयर इट रिलेट्स टू द एनी प्रोसिक्यूशन रिलेटिंग टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 82 एंड 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है बात? जी भाई, क्लियर. सेक्शन 45। Section 45. Grounds of opinion when relevant. Whenever the देखिए, opinion. जो फैक्ट्स है जिससे रिलेटेड ओपिनियन दी किसी पर्सन ने, चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे एक्सपर्ट हो, वो तो रेलिवेंट है ही है। जिन ग्राउंड पे दी है वो भी रेलिवेंट है। यही सेक्शन 45 कहना चाहता है। पढ़िए। Section 45. Grounds of opinion when relevant. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन पढ़ें। Illustration. An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. ठीक है ना? कह रहे हैं कि एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन। जो एक्सपेरिमेंट उसके द्वारा किए गए थे और ऑल्सो रेलिवेंट व्हेन ही हैज
been forming his opinion upon such fact. ठीक है, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पढ़ा हमने आज, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, एक्सपर्ट में टेक एन असिस्टेंस ऑफ रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी। एक्सपर्ट अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है हु इज नॉट एक्सपर्ट, ही कैन नॉट रिफ्रेश हिज मेमोरी। ठीक है, एक्सपर्ट इज एन ऑर्डिनरी पर्सन who does not require to be specially skilled in such a field, but an expert must have to be specially skilled in such a field which has been provided under section 39. क्लियर है बात? ठीक है, तो आज हमने जो है एक्सपर्ट, कल हम जो है कैरेक्टर पढ़ेंगे, व्हेन कैरेक्टर इज रेलिवेंट। और आप लोग जो है चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देख रहे हैं कुछ सब्सक्रिप्शन वो है ही नहीं, बहुत से लोग जो है क्लासेस के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों का फायदा है भाई, सोचा कि इधर उधर बच्चे भटकते हैं उनको फायदा ही मिलता रहेगा। ठीक है, एएनजे लॉ क्लास। क्या कह रही हो? सर वो लिंक आया ही नहीं ग्रुप में, YouTube। ग्रुप में? अच्छा, यूट्यूब वाला नहीं आया तो लिख लीजिए एएनजे लॉ क्लासेस, जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा है यही है। यूट्यूब पे डालिएगा एएनजे लॉ क्लासेस तो आपको मिल जाएगा, आपको वीडियो भी वहां मिल जाएगी। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं वहां पर। और अभी सब टॉपिक पे वहां मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे, फैमिली लॉ पर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर, सभी जितने भी जुडिशियरी एपीओ में रिलेटेड सब्जेक्ट हैं सब पर मिलेंगे। और हाँ, दूसरी बात, आपको जो है अगर जीएस किसी को भी पढ़नी हो तो जीएस का हमारा एक बैच और शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, स्पेशली रिलेटिंग टू द एपीओ। ठीक है, एपीओ का बैच होगा, एपीओ के लिए होगा, यूपी एपीओ के लिए जीएस का बैच। ठीक है, तो आप जो है यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सा फायदा अभी आपको और होने वाला है। थैंक यू सो मच। कल सर अनुज संडे ये है, किस मंडे नाम से मिलेंगे। एएनजे एएनजे ओके सर। एएनजे लॉ क्लासेस। ठीक है, क्लास होगी क्या हर्ष भेज दीजिएगा सबको, सर मैंने कुछ तो संडे को ग्रुप कोई में क्लास भेजा। नहीं होगी। सर मैंने कुछ ग्रुप में तो भेजा था। जैसे संदीप जिस ग्रुप में है ना हम्म उसको तो मैं डाला हुआ था। बाकी मैं ग्रुप में ऐड हुआ हुआ था, क्योंकि एक्चुअली सर आपने जब मुझे बोला था ना तब उसमें एक भी वीडियो थी नहीं, तो फिर डीएम आ रहे थे कुछ में कि इस पे तो कुछ डाल ही नहीं रखा है, तो फिर मैं वेट कर रहा था जो हाँ वीडियो हाँ अपलोड हो। हाँ, तो वो वीडियो अपलोड हो ही गई है और सब होंगे। एविडेंस की जो बची हैं वो हम अलग से रिकॉर्ड करके लेक्चर डालेंगे, जैसे एडमिशन की नहीं है और प्ली ऑफ एलिबाई की नहीं है, सेक्शन 12 की नहीं है, तो ये सब हम उसमें डालेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम फिर मंडे मिलते हैं अपने यूजुअल टाइम 9 बजे। जी, अब सवाल आप पूछ सकती हैं। सर एआईबी के लिए थोड़ा बता दीजिए। एआईबी के लिए उसमें क्या मतलब कि अभी भी बताना पड़ेगा? अरे हो जाएगा अब नहीं, तुम्हारा, जो अब सब्जेक्ट आप इतना पढ़ा रहे तुमने हो वो पढ़ नहीं, लिया लेकिन कि अब और हो भी। जाएगा। सर ये नहीं कह रहे जो आपने नहीं पढ़ा है, जो सब्जेक्ट उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो उन सब्जेक्ट को जो है, जो भी एआईबी में आ रहे हैं उनको जो है आप हमको बता दीजिएगा, उसमें जो हमने पढ़ा दिए। वैसे उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुकी हैं आप, और नहीं जो पढ़े भी आपसे, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पढ़े है। पहले से अपने से। अच्छा आपसे कहाँ पढ़े हैं? अच्छा, नहीं पढ़े। ये क्या मैसेज किया है भाई, किसने किया है? सर आप कॉपी से पढ़ाते हो? कॉपी से मतलब अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं पीपीटी बनाऊं और पीपीटी के बाद उनको
देखिए हो सकता है कि लेक्चर पीपीटी वगैरह में, क्योंकि देखिए पीपीटी के लिए यार फिर जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि पीपीटी में आदमी एक स्ट्रिक्ट हो जाता है, पीपीटी को बोलना नहीं। पीपीटी से ज्यादा बेहतर है कि जो चीज आपको बतानी है उन चीजों में हम बता दें। क्लियर है? चलिए तो मंडे मिलते हैं।